हेलो फ्यूचर जजेस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल. टुडे वी हैव मेट फॉर द वाइवा of NI Act and Probation Act. I hope you guys are well prepared because I have a lot of questions. Are you guys ready? Yes, ma'am. Good. At least somebody is awake. मुझे लगा बाकी सब सो रहे हैं. चलिए चलिए उठ जाइए सब लोग फटाफट और NI एक्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दीजिए. Ma'am, I've not prepared NI Act as such. I've not studied it, but can I still be attending the session? Is that all right? Yes, of course, Divya, you can attend the session and you can write down the questions. If you like a few questions, then you can write down the questions in your notes and then you can go back to them whenever you like. Okay? Sure, ma'am. Thank you so much. We will be going slow, and if you guys want me to repeat any question, then I will repeat the question. Okay? Okay. Let's begin with the very first question. The very first question is, when did NI Act came into force? Um, Ma'am, uh, I think 6th February 2003, I guess. No, NI Act came into force on 1st of March 1882. Okay. तो अगर ये नेगेटिव मार्किंग होती तो विकांशा का 1 मार्क्स नेगेटिव हो जाता. So NI Act came into force on 1st March 1882. So this is only to jog your memory, guys. Abhi easy questions आएंगे, but then the level of questions is going to increase. All right. So tell me, what is dishonor of check for insufficiency of funds? Who's going to tell me? Dishonor of check for insufficiency of funds. And in which section do we deal with it? Ma'am, it Ma'am, is under section 138. Yes, under Section section. 138. And what does section 138 say? What are the two conditions that tell us that the check has been dishonored? Why is the check dishonored? Ma'am, first is due to the insufficiency of funds, and second is that the amount exceeds the arranged fund from the bank. I mean, we have make like reached the maximum limit. That's why the check has bounced. Okay, very good. So Vikansha has answered one question correctly. That gives her 1 point. Now these are your participation points. 1 point for every correct answer. And for this is our first Viva lecture, so I'm not going to give you negative marking, but from here onwards, there will be negative marking for wrong answers. Okay. So the next question. What is the punishment for dishonor of checks? मैम मैम imprisonment for a term जो कि 2 year तक extend हो सकता है and मैम fine twice the amount of the check or both. Or both? Good, very good. So Anushka gets 1 point. Now you guys who are sitting offline, you will have to be quick. All right, because वो लोग directly बोलना start कर देते हैं. Okay. The check must be presented to the bank within how many months? Wrong answer. 3 months, 6 month ma'am. or 3 months. months. RBI circular says 3 months. 3 months, yes. Now this is, since everybody spoke together, 3 months, तो ठीक है, कोई बात नहीं. This point मैम will not go to anybody. But the next मैम question, for the next question, I want you guys to listen to this carefully. Which RBI notification reduced the period from 6 months to 3 months for the validity of check? Do you guys know the number of the RBI notification, the name of the RBI notification? यस मैम Vijay, ये 4 नवंबर 2000 wrong. यस Vijay, आप बताइए. 4 नवंबर 2012 को नोटिफिकेशन आया था. Yes, very good. It is called RBI. लेकिन मैम ये ना आरबीआई का नोटिफिकेशन है 3 months. अपने एक्ट में अभी अमेंडमेंट नहीं हुआ इसमें.
बच्चे, the validity of the checks as per RBI is 3 months only. एक्ट में अमेंडमेंट हो चुका है. एक्ट में स्टार मार्क आता है, एस्ट्रिक आता है बेयर एक्ट में, और उसमें एस्ट्रिक में नीचे आपके फुटनोट में लिखा होता है कि आरबीआई का ये नोटिफिकेशन ये कहता है कि नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू व्हाट 3 months. दैट इज व्हाई आई कीप टेलिंग यू गाइस कि बेयर एक्ट को ध्यान से पढ़ें. ओके, हाउ मेनी डेज ऑफ नोटिस ऑफ डिसऑनर शुड बी गिवन? डिसऑनर होने का नोटिस कितने दिन में देना होता है? 15 days में 1 30 month days. किसने बोला? रॉन्ग. 30 days. 30 डेज 30 आपने बोला, days. लेकिन आपसे पहले इन्होंने बोला. व्हाट्स योर गुड नेम? 30 डेज यहाँ पे किसने बोला था? आपका नाम बताइए. सॉरी, you get 1 point. All right. The next question is time given for payment from the date of receipt of notice. जब नोटिस दे दिया है डिसऑनर का. 15 days. Again, 15 2 days. points. 2 points. Okay. So अब कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो जाएं. चेक है एक, ए के पास एक चेक है. ए हैज obtained that check by unlawful means, by fraud or any other unlawful means. So now, what is the status of that check? उस चेक का स्टेटस क्या है? Can A cash that check? क्या वो उस चेक को कैश कर सकता है? अगर नहीं कर सकता है तो उसके लिए स्टेटस कौन से सेक्शन में दिया गया है? अनलॉफुली ऑब्टेन चेक. आप रास्ते पे जा रहे हैं, आपको मिल गया पड़ा हुआ चेक और आप उसे लेकर के बैंक में चले गए. Which section deals with it? Yes, anyone? मैम ये presumption से related है क्या? नहीं, ये प्रिजम्पशन से रिलेटेड नहीं है. ये फैक्चुअल एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम जो आती है आपके पास में कि ए रास्ते पे जा रहा था, ए को रास्ते में एक चेक पड़ा हुआ मिला. ठीक है, अब ए ने वो चेक तो आईपीसी में चला जाएगा क्या मिस एप्रोप्रिएशन में? नहीं, जब एनआई है इसके लिए बना हुआ तो आईपीसी में क्यों जाएगा? अच्छा. सेक्शन 58 गाइस, सेक्शन 58 ऑफ एनआई एक्ट. अब आप लोग कहेंगे कि मैम हमें तो 138 और वहां तक 148 तक ही पढ़ना है. बट नो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं. नो, 58, सेक्शन 58 डील्स विद इट. अनलॉफुली अगर कोई चेक आपने लिया है कहीं से, आपको पड़ा हुआ गिरा हुआ कोई चेक मिला है, तो उसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी. आप जाकर के कैश नहीं करवा सकते. अगर आप करवाते हैं, यू विल बी लाइबल टू पे कॉम्पनसेशन. Section 58 of the Act says that. बिल्कुल आते हैं, डीजेस में भी आते हैं. डीजेस में आपको ऐसे प्रॉब्लम दे देंगे that this is the problem. This is why you have to read holistically. पूरा नहीं पढ़ना पड़ेगा, बट ये क्लास इसीलिए तो हो रही है ताकि आपको पता चले कि एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम आ जाती है अगर एनआई एक्ट में से, तो क्या करना है, कैसे डील करना. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है. ए ने एक चेक लिखा. ए राइट्स अ चेक इन द नेम ऑफ बी. ही गिव्स द चेक टू हिज सर्वेंट. बी के सर्वेंट सी को वो चेक दे देता है कि तुम ये चेक बी तक पहुंचाकर आ जाओ. ठीक है, सबको क्वेश्चन समझ में आ गया यहाँ तक? ए राइट्स अ चेक इन द नेम ऑफ बी और वो चेक बी को डिलीवर करने के लिए सी को देता है. सी बी का सर्वेंट है. ए ने चेक लिखा किसके नाम पे? बी के नाम पे, लेकिन दिया किसको? सी को दिया. सी कौन है? बी का सर्वेंट है. बी का सर्वेंट है. बी ने अपने सर्वेंट को भेजा कि तुम चेक लेके आ जाओ, और ए ने चेक सी को दे दिया कि तुम ये चेक जो है बी को दे देना. नाउ द चेक गेट्स लॉस्ट. सी से चेक खो जाता है रास्ते में. व्हाट विल बी द सिचुएशन इन दिस केस? हु विल बी लायबल फॉर लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द चेक? मैम ये सीबीटी नहीं हुआ आईपीसी का? नो, आईपीसी में हम लोग नहीं जाएंगे बिकॉज एनआई एक्ट इज अ शीप. इट्स कॉल्ड अ शीप इन अ वुल्फ्स क्लोथिंग. शीप इन अ वुल्फ्स क्लोथिंग, ये बात याद रखेंगे.
देखने में ये एक्ट आपको सिविल लॉ लगता है, बट ये क्रिमिनल लॉ भी है. इफ दिस इज अ स्पेसिफाइड एक्ट व्हिच डील्स विथ द क्राइम्स रिलेटिंग टू चेक, द डिसऑनर रिलेटिंग टू चेक, देन हम हर चीज का जवाब पहले एनआई में ढूंढेंगे और फिर हम जनरल लॉ पे जाएंगे. Exactly. So we will also come to that. So the question is, who will be liable here in this particular situation? Yes, correct answer. B will be liable. But why B will be liable? No, no, all of you are wrong. यहाँ पे B कौन है? B है होल्डर चेक का. Always the holder will be liable for loss and destruction of the check. नहीं, the holder of the check will be liable for the loss and destruction of the check. This is written where? This is written in section 8 of NI Act. सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर हम पढ़ लेंगे तो एप्लीकेशन बेस्ड एनआई एक्ट के प्रॉब्लम्स वी वोंट बी एबल टू सॉल्व. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज वेयर इज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई. ड्रॉई की क्या लायबिलिटी होती है एनआई एक्ट में? यस, करेक्ट. तो ड्रॉई अगर मान लीजिए बैंक नहीं देता है, प्रेजेंट नहीं करता है चेक को, मतलब अप्रूव नहीं करता है, कैश नहीं करता है, देन व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ ड्रॉई? ड्रॉवर ने, ए ने चेक ड्रॉ कर दिया है किसी पर्टिकुलर बैंक पे, अब वो ड्रॉई बैंक है और वहां पे चेक को उनको कैश करना है, देना है उनको पेमेंट, क्योंकि भाई चेक आया है, देना पड़ेगा. तो उस केस में बैंक मना कर देता है या बैंक से कोई गलती हो जाती है, तो बैंक की लायबिलिटी क्या होगी और कहाँ होगी? आप लोगों ने तो सिर्फ 138 पढ़ लिया और कंपाउंडेबल है ये पढ़ लिया. आपको लगा मैम यही पूछेंगी. वेरी गुड. चैप्टर 17 पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, दैट इज अ वेरी गुड थिंग. उस पे भी आएंगे. बताइए क्या होगी लाइबिलिटी? ड्रॉई की लाइबिलिटी सेक्शन 31 में दी गई है. ड्रॉई जो है, जो बैंक होगा, वो लाइबल होगा कॉम्पनसेशन देने के लिए उस पर्सन को जिसका लॉस हुआ. ऑल राइट, ओके. अब डेफिनेशंस आप लोगों ने नहीं पढ़ी होंगी. चेक, वेयर इज चेक डिफाइंड? आपसे पूछ लिया चेक सेक्शन क्या होता 4, है. सेक्शन 4 मैम. दिव्या रॉन्ग आंसर, पर आपकी आज section नेगेटिव 6 मार्किंग नहीं हो रही है. section 6 मैम. यस, पिंकी करेक्ट आंसर. पिंकी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है. सेक्शन 6 में डिफाइंड है चेक क्या होता है. ऑल राइट, अब ये तो बेसिक है. डिसऑनर ऑफ चेक पढ़ रहे हैं बट चेक नहीं पढ़ा, कैसे पता चलेगा क्या डिसऑनर हो रहा है? डिसऑनर ऑफ चेक या डिसऑनर ऑफ इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन कहाँ दी हुई है? व्हाट इज डिसऑनर ऑफ चेक? इसका मीनिंग क्या है? अनादरण का. चेक का अनादरण कहाँ दिया हुआ है? क्या हुआ मैम, दूसरे सेक्शंस में से पूछ रही हैं? हम तो चैप्टर 17 पढ़ के आए हैं. अच्छा चलिए ठीक है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, offense of dishonor of check is compoundable under NI Act. In which section? पूरा क्वेश्चन सुनेंगे. In which question, और जिसे दोनों आते हैं ना, दोनों पार्ट, सिर्फ वही जवाब देगा. In which section is it compoundable and क्या CRPC अप्लाई होता है चेक्स के ऑफेंसेस की कंपाउंडेबिलिटी पे या नहीं? यस, व्हाट्स योर गुड नेम? निकिता. यस, गुड. यस. Because the section itself says कि notwithstanding CRPC, CRPC में जो भी दिया हुआ है वो अप्लाई नहीं होगा. ऑल राइट, तो निकिता विल गेट 1 पॉइंट. अच्छा, और ये बताइए कि ड्रॉवर और ड्रॉई कहाँ पे डिफाइंड है?
मैम वेरी गुड 7 निकिता। 7 सेक्शन 7 दिव्या, निकिता ने पहले जवाब दिया है, सो निकिता विल गेट 2 पॉइंट्स। गुड। अब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस, कीवर्ड्स हैं। अगर आपसे शॉर्ट नोट में भी पूछ लिया गया, एक क्वेश्चन आता है एनआई एक्ट का और 4 चीजें पूछ ली जाती हैं। ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है, होल्डर कौन होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन होता है, क्या लिखेंगे? उन्होंने तो सिर्फ ये कह दिया कि चैप्टर आपका यही पढ़ना है 17 और उसके बाद में आगे कुछ, बट डेफिनेशंस तो इंक्लूडेड होती हैं हर चीज में। ऑल राइट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कैन अ पार्टनरशिप फर्म, ध्यान से सुनिएगा, कैन अ पार्टनरशिप फर्म बी हेल्ड लायबल फॉर डिसऑनर ऑफ चेक यस Yes, ma'am. अंडर सेक्शन 141? वेरी गुड। निकिता 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स फॉर निकिता। आप लोग ऑनलाइन वाले थोड़े स्लो हैं, पहले ही बोल दे रहा है कोई यहाँ पे। ओके, नाउ वी ऑल नो 141 में कंपनीज को लाइबल होल्ड किया जाता है। कौन सा केस है, कौन सा केस है जिसने ये एस्टैब्लिश किया था, इन विच लैंडमार्क जजमेंट डीमिंग फिक्शन ऑफ लॉ को एक्सप्लेन करके सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्प किया था कि कंपनीज लाइबल होंगी। सेक्शन 141 को एक्सपाउंड किया था, समझाया था डिटेल में। व्हाट इज द नेम ऑफ द लैंडमार्क केस? और ये जो जवाब देगा उसको 2 पॉइंट्स मिलेंगे। एनीबडी? मैम तमिलनाडु MS न्यूज जय Victor प्रिंट। लक्ष्मी नारायण। Nair versus पहले पहले Kanchan. विजय, विजय विजय आपका स्पीकर मुझे पहले दिखा था, विजय आप बोलिए। तमिलनाडु न्यूज प्रिंट एंड पेपर्स लिमिटेड। नो, रॉन्ग आंसर। मैम Okay. जय लक्ष्मी नारायण। No, Reena, wrong answer. The correct Ma'am, answer, MS Victor Instrument Private Limited versus Kanchan. no. Anybody else? नहीं? The case is Anita Hada versus Godfather Travels Private Limited. Anita Hada versus Godfather Travels Private Limited, 2012, AIR 2012 सुप्रीम कोर्ट। इसमें अभिग्रहित डीमिंग फिक्शन ऑफ लॉ की बात की थी। केस का नेम रिपीट कर देंगे? अनीता हाडा वर्सेस गॉडफादर ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, AIR 2012। इसमें अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक्सपाउंड किया कि क्यों कंपनीज लायबल होती हैं, क्या पर्पस है सेक्शन 141 के होने का, कंपनी भी लायबल होगी और कंपनी के जो भी लोग वहां पर इन्वॉल्व है कंडक्ट में बिजनेस के, वो भी लायबल होंगे। दिस इज डीमिंग फिक्शन ऑफ लॉ। ऑल राइट, ओके। ये जो आने वाला क्वेश्चन है ये बहुत इजी है एंड आई थिंक ये सबको पता होगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रायल, duration of trial for dishonor of check is how many months? मैम 6 months 6 मंथ। Vijay, this point goes to Vijay because Vijay ने सबसे तेज बोला था, Nikita was not sure. Okay, अब ये बताइए कि ये कौन से सेक्शन में दी हुई है ये ड्यूरेशन कि 6 महीने में ट्रायल कंप्लीट करना है? Which सेक्शन section? 143 में 143। Yes, very good. तो रीना का भी 1 पॉइंट हो चुका है, सबका खाता खुल गया है, बट निकिता सबसे आगे चल रही है। गुड। Okay, now in what conditions a magistrate may convert the summary trial into normal trial under NI Act? वो क्या शर्तें हैं जिनके चलते मजिस्ट्रेट समरी ट्रायल से हटा करके उसको नॉर्मल ट्रायल में कन्वर्ट कर सकता है, बताएं। Ma'am, if it is मैम Ma'am, undesirable section to have a summary मामला trial. ऐसा है कि जिसमें 1 साल से सबको ज्यादा की focus सजा answer। दी जा सकती है, हाँ, और तो वो मजिस्ट्रेट पक्षों को सुनेगा, देन फिर आदेश देगा और साक्ष्य को पुनः अभिलिखित करेगा वो। ओके रीना, आपका आंसर सही है, पार्टली करेक्ट है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड। आप बताइए निकिता। मैम कैन यू रिपीट प्लीज?
under what conditions the magistrate may convert the summary trial of dishonor of check into a normal trial? मैम समरी जब ट्रायल तो मजिस्ट्रेट को चल रही है, बाय डिफॉल्ट समरी ट्रायल करने के लिए बोला गया है, बट मैजिस्ट्रेट की पावर है, द सेक्शन सेज पावर ऑफ मैजिस्ट्रेट, शक्ति दी गई है, सशक्त है, लेकिन उसे नॉर्मल ट्रायल में वो कन्वर्ट कर सकता है। कब कन्वर्ट कर सकता है? हिंट चाहिए आप लोगों को? प्रोवाइजो। जब मैम 1 साल से ज्यादा सजा देने का या फिर उनको लगे कि अन्य युक्त कारण से अवांछनीय हो जाएगा तो कर सकते हैं। अच्छा, आप एक बारी ऑनलाइन वाले रिपीट कीजिए, फिर मैं ऑफलाइन पे आऊंगी। हाँ बोलिए। मैम जब मजिस्ट्रेट को ऐसा लगे कि उसे 1 साल से ज्यादा की सजा दी जानी चाहिए या कोई अदर रीजन है जिसकी वजह से लगे कि समरी ट्रायल करना युक्त नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। आपका नाम? राजल मैम। आपने कंप्लीट आंसर दिया है। या कोई और उपयुक्त कारण, एनी अदर रीजन दैट द मजिस्ट्रेट थिंक्स रीजनेबल। ओके, ठीक है, गुड। What is section 143A of NI Act? 143 Interim compensation. Interim compensation. किसने दिया सबसे पहले आंसर? I think मैम साथ में ही दिया है। सबने साथ में दिया। अब ये थोड़ा सा ऐसा है कि अब सब ऑफलाइन होते तो फिर ऐसे हाथ खड़ा करते तो मजा आता। हाँ, चले कोई बात नहीं, लैप्स हो जाता है फिर ये क्वेश्चन। interim compensation. Okay, the next question is important, very important from the point of view of prelims. Which court can direct interim compensation under section 143A? JMFC और MM, यानी कि ट्रायल कोर्ट। Trial court. 143A में जो पावर्स हैं वो सिर्फ ट्रायल कोर्ट की ही हैं। जो अपीलेट कोर्ट की पावर्स आती हैं वो आगे आती हैं, वो 2018 का दूसरा अमेंडमेंट जो ऐड किया है वो है। ठीक है, उस पे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निकिता का पॉइंट। यस, वेरी गुड, ये अच्छा है, ये कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होनी चाहिए क्योंकि आप सब लोग कॉम्पिटिटर्स हैं एक दूसरे के। So the next question is, what is the limit of interim compensation? 20%, चेक ma'am. की रसीद 20% से अधिक नहीं होगा। 20% of the ठीक check है, value. आपका नाम? शालू। शालू को मिलता है 1 पॉइंट। ठीक है, 20%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरिम कॉम्पनसेशन कितने दिनों में? 60 days from the date of order, ma'am. 60 days मैम। 60 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर। किसने 30 बोला days सबसे में पहले? मैंने, यहाँ मैम। कर सकते हैं। नाम बताइए। मैंने? दिव्या। दिव्या। दिव्या का 1 पॉइंट। 20% of the amount of check. Yes. ओके, दिव्या का 1 पॉइंट। ठीक है, सबका ऐसा लालच नहीं करना, सबका खुलना चाहिए खाता अकाउंट तो एटलीस्ट, राइट? ओके, पावर्स ऑफ एपेलेट कोर्ट रिगार्डिंग पेमेंट कौन से सेक्शन में दी गई है पावर्स? 148। कौन कह रहा है 148? और कौन कौन है 148 वाले? 148 only, ma'am. But again, it's subject to certain conditions, na? Only against conviction hai, not under general circumstances. No, not under general circumstances, but the powers of appellate court are regarding payment. अगर किसी भी तरीके का पेमेंट ऑर्डर कर दिया है ट्रायल कोर्ट ने, पहले ही ट्रायल कोर्ट बता चुका है कि ये पेमेंट इतना % करना है, उसके बाद में अपीलेट कोर्ट में अपील आ रही है, तो अपीलेट कोर्ट के पास जो पावर्स हैं वो सेक्शन 148 में हैं। बिल्कुल सही। आई वाज जस्ट कंफ्यूजिंग, आई वाज जस्ट चेकिंग यू गाइस कि कितने कॉन्फिडेंट हो। तो किसने दिया था आंसर? आपने दिया था। 3 पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ से अगर किसी को जवाब देना है तो डायरेक्ट बोलना स्टार्ट नहीं करना है, रेज योर हैंड्स, और वहां से किसी को करना है तो अपना नाम लेके बोलेंगे कि मैम आई वांट टू स्पीक। ओके, कंडीशंस फॉर कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 138। व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर कॉग्निजेंस अंडर सेक्शन 138? हिंदी वालों के लिए, कॉग्निजेंस ले ली जाए इसके लिए
एसेंशियल कंडीशन क्या है डिसऑनर की, जो ऑफेंस है उसके लिए। तो ये 138 में नहीं दी हुई है, ये कॉग्निजेंस की कंडीशन किसी दूसरे सेक्शन में 142 दी हुई है। अब 142 में अब आप लोग अपना Yes, ma'am. बताइए, कौन बताएगा? सारी कंडीशंस आनी चाहिए। देयर आर मैम 3 कंडीशंस, Yes, 3 ma'am. I'd like to कंडीशंस टू try. इट। I'd like to try. मेरे को यस, दो व्हाट्स याद योर है गुड अभी नेम? ऑफ दिव्या, ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड मेरे को हाँ. दो याद है कि 1 महीने के अंदर आपका COA आना चाहिए 138 का. ओके, गुड Then the complaint should be in writing. गुड। एंड एक और है प्रिस्क्राइब पीरियड का कुछ था मैम, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है. एंड कॉग्निजेंस टेकन बाय MM, JMFC या MM, ये JMFC और MM, यस 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 यस। हाँ. बट मैम these are उसमें not the 3 प्रोविजो भी है, proviso भी है, but उस these are not प्रोविजो में ना the exact conditions that I am looking for. So दिव्या, आपका आंसर सही मैम है, एक पार्टली करेक्ट है। यस एक और हम्म. है जो चेक का ड्रॉवर होगा वही देगा। यस, गुड, नाउ इट्स कंप्लीट। डिड दिव्या कंप्लीट इट और थैंक किसी यू. और ने बोला? बस कंडीशन वही थी। ओके, तो दिव्या विल थैंक गेट यू. 1 पॉइंट। दिव्या के हो गए 2 पॉइंट्स। अब ये हुआ है कंप्लीट आपका आंसर। अब जो इसको एक बारी में इस पूरे आंसर को, सारी कंडीशंस को बता देगा, उसे भी एक बोनस पॉइंट मिलेगा। बताइए। अटक गए, रॉन्ग, पीछे आप। शालू, शालू बताएंगी। अटकना नहीं है। गुड। मैम मैं कंटिन्यू बता दूंगी। पहले पहले शालू का चल रहा है, हाँ शालू। तब से ठीक है, बिल्कुल, उससे कोई भी कम कोट नहीं ट्राई कर सकता। ओके, राइट। शालू विल ऑल्सो गेट 1 पॉइंट बिकॉज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम 2 अलग टीम्स हैं, ऑफ कोर्स वी कैन नॉट चीट, राइट? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। टेल मी, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ओके ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसके लिए मैं आप लोगों को सेक्शन तो बता चुकी हूँ, बट अब ये है कि आप लोग मुझे प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए, ठीक है? प्रॉब्लम है, ए ने एक चेक ड्रॉ किया है वर्थ ₹50,000। ऑल राइट, किसके लिए ड्रॉ किया है? बी के लिए ड्रॉ किया है। किसके? ड्रॉई कौन है? लेट्स से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है? 50,000 के लिए ड्रॉ किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को ये क्लियर करना है। अब होता क्या है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बी से ये कन्वे करता है कि चेक डिसऑनर हो गया है, चेक का अनादरण हो गया है फॉर इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स। स्टेट बैंक में जो इंसान, जो व्यक्ति, जो ऑफिसर है जिसके पास चेक आता है, वो 50,000 को गलती से 5 लाख पढ़ लेता है। उसे लगता है कि ये 5 लाख का अमाउंट तो है ही नहीं एक ही अकाउंट में, तो वो ये कन्वे कर देता है कि इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स की वजह से ये चेक डिसऑनर हो गया है। हु विल बी लायबल हियर? वाई? आंसर देने से नहीं, सिर्फ आंसर और लॉजिक उसके बाद। आप शालू, हाँ। रॉन्ग, शालू आपने क्वेश्चन
फैक्ट्स ध्यान से नहीं सुने, इसलिए क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना एग्जाम में, ठीक है? मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए ना एक बार। क्वेश्चन रिपीट। ए ने एक चेक ड्रॉ किया 50,000 रुपीज के लिए, 50,000 रुपए के लिए ही उसने लिखा चेक। किसको लिखा? बी को लिखा। किसको क्लियर करना था? स्टेट बैंक को क्लियर करना था। स्टेट बैंक में क्लियर करने वाले व्यक्ति ने 50,000 को गलती से 5 लाख समझ लिया, 5 लाख समझ लिया, और बी को ये बोला कि इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स है, इसलिए आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो चुका है, डिसऑनर हो चुका है। बट रियल में नहीं थी इनसफिशिएंसी ऑफ फंड्स, ठीक? मैम नो वन इज लायबल। No, wrong answer. SBI will be liable. SBI will be liable and SBI will have to pay the compensation under section 31. Very good. निकिता का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, तो निकिता is going to get 5 points. सबसे आगे निकिता चल रही है गाइस। ओके, अब आपके जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं वो ये हैं कि पेई कौन है, कहाँ पे डिफाइंड है, राइट? और आपका बनता है होल्डर कौन है, कहाँ पे डिफाइंड है, होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन है, कहाँ पे डिफाइंड है। ये सब हमने डिस्कस किया कि डेफिनेशन सारी देख के जानी है, नो मैटर कोई भी चैप्टर बोला हो, और ये आज के लिए नहीं, हमेशा के लिए, ठीक है? ऑल राइट, ओके। किसी को अब तक जो हमने क्वेश्चंस आंसर्स जो हमने किया उसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन रिपीट करना है? नहीं? और पूछे एनआई में से, या फिर प्रोबेशन पे मूव ऑन करें? मैम मैम जो आपने इधर अभी लास्ट प्रॉब्लम, में बताया हाँ उसमें लास्ट 31 एनआई एक्ट के में। हाँ जी, सेक्शन 31 एनआई एक्ट। ओके मैम। मैम एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम पिंकी। मैम मेंस के लिए मैम फिर हमें ये पूरा बेयर एक्ट पढ़ना होगा क्या? नहीं, पूरा बेयर एक्ट नहीं पढ़ना है, एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार इन सभी डेफिनेशंस को अच्छी तरह समझना है। सिर्फ अगर हम रट लेंगे कि डिसऑनर ऑफ चेक ऐसे ऐसे होता है, पे ये ऐसे ऐसे कर देता है, ड्रॉर ये कर देता है, ड्रॉ ये कर देता है, अगर इसमें आपका कोई एक भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया ना, जैसे कि आपके मॉक टेस्ट जो है उसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंक्लूडेड है कि पोस्ट डेटेड चेक विज़ावी उसकी लायबिलिटी कंपनीज के लिए क्या हो, उस टाइम पे आप ये सोचेंगे कि ये पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है, सोचेंगे कि नहीं? क्या होता है पोस्ट डेटेड चेक? कुछ नहीं होता है। पोस्ट डेटेड चेक वो चेक होता है जिसमें डेट फ्यूचर की लिखी हो। यहाँ पे आज तारीख है हमारी 3 फरवरी, यहाँ पे उसमें तारीख लिखी है 6 फरवरी, 6 फरवरी 2024। ये है आपका पोस्ट डेटेड चेक। अब इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, देयर इज नो क्वेश्चन इन इट। पोस्ट डेटेड चेक जो है वो डिसऑनर होगा तो भी, जैसे एक इंडिविजुअल लायबल होता है वैसे ही कंपनी भी लायबल होगी। बट क्वेश्चन को इस तरीके से फ्रेम किया गया है कि अगर आपको नहीं पता कि पोस्ट डेटेड चेक क्या होता है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ऑल राइट, ठीक है। एनआई में से कभी भी सीधे सीधे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, और अगर आप अच्छे लेवल का पेपर देख रहे हैं तो सीधे क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं आते हैं। इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है कि एक बार सारी डेफिनेशन समझ लेनी है, और फिर उसके बाद सारा एप्लीकेशन जो है ना वो आपको देखना है। मैम आई हैव वन क्वेश्चन। यस, अगर पोस्ट डेटेड चेक डिसऑनर हो जाता है तो उस कंडीशन में आप 138 में लाइबल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पोस्ट डेटेड हो चेक, चाहे आज की डेट का ही हो, वैलिडिटी में है चेक, प्रेजेंट कर दिया है टाइम से, नोटिस दे दिया है, हर चीज प्रॉपर है, तो लायबल होगा पर्सन। क्यों नहीं होगा लायबल? ये मेरा क्रॉस क्वेश्चन है आपसे, क्यों नहीं होगा लायबल? बिल्कुल लायबल होगा। डिसऑनर तो डिसऑनर है, नॉन पेमेंट हुआ जैसे ही वैसे ही वो डिसऑनर हो गया। ऑल द कंडीशंस ऑफ द ऑफेंस आर सेटिस्फाइड, तो आपका ऑफेंस एक्टिव हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। ऑल राइट, लेट्स मूव ओके। ऑन टू एनआई एक्ट। प्रोबेशन, सॉरी, क्वेश्चन प्रोबेशन तो मैम, एनआई में। यस, आप जो आपकी शीट है ना क्वेश्चंस वाली, वो हमें बाद में मिल जाएगी क्या ग्रुप में, ताकि हम हाँ रिवाइज कर लें उनको? मिल जाएंगे, बिल्कुल मिल जाएंगे सारे क्वेश्चंस। मैं एक पीडीएफ में या जैसे भी मैं दे दूंगी या मैम, ओके? ओके, थैंक यू। हाँ, जिससे आप लोगों के पास में ये क्वेश्चंस रहे तो आपको पता रहे कि ये रेलेवेंट चीजें हैं, जल्दी जल्दी इतना तो पढ़ ही लेना, ठीक है? ओके, प्रोबेशन पे चले। तो अभी भी आप लोगों के पास में चांस है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनके पास में चांस है रिडीम करने का अपने पॉइंट्स, बिकॉज यहाँ पे
प्रोबेशन एक इजी एक्ट है, और प्रोबेशन सिंस मैंने ही पढ़ाया आप लोगों को, तो मैं अच्छे आंसर्स एक्सपेक्ट कर रही हूँ। केस लॉज पढ़ के आए हैं ना? यस मैम। ठीक है, तो पहले बम्पर क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। बम्पर क्वेश्चन ये ऐसा है क्वेश्चन जिसका पूरा पूरा कंप्लीट आंसर देने पे आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे एक ही क्वेश्चन के। ओके, एंड इसके लिए यू गाइज हैव टू रेज योर वॉइस। ऑनलाइन वाले अपना नाम बोलना है और बोलना है कि मैम आई वांट टू अटेम्प्ट, ठीक है, जैसे पहले दिव्या ने किया था। और यहाँ पे जो लोग हैं पूरा आंसर आता है तो ही अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, ठीक है। रेज योर हैंड्स। गिव मी 3 points of differences between due admonition and probation. सम्यक भर्त्सना और परिवीक्षा में 3 डिफरेंसेस बताएंगे। ओके, रेज योर वॉइस। जज बन चुके हो, ऐसे ही सोचना है कि मैं जज हूं ऑलरेडी। रेज योर वॉइस। हम्म हम्म तो आपका पहला डिफरेंस तो ऑफेंस पे अब आना चाहिए। कौन से ऑफेंसेस पे बनता है ड्यू एडमॉनिशन, ठीक है, और कौन से ऑफेंसेस पे बनता है आपका प्रोबेशन, ठीक है। दूसरा आपका क्या आना चाहिए, आपने डिफाइन नहीं किया, अपने ओन वर्ड्स में डिफाइन या मीनिंग बताइए प्रोबेशन। और मैंने बताया है क्लास में, मैंने लिखवाया है कि प्रोबेशन का एक लाइन में मीनिंग पूछा जाए। यस, गुड। नाउ ड्यू एडमॉनिशन क्या होता है? ड्यू एडमॉनिशन इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट, दैट इज ऑल। ड्यू एडमॉनिशन इज अ स्लैप ऑन द रिस्ट, बस एक तरीके की डांट है, डांट फटकार है, बस, ठीक है। तो आपको पहले तो ये बताना है कि ये सीरियस नहीं है ड्यू एडमॉनिशन, ये तो सिर्फ डांट फटकार है, और प्रोबेशन जो है उसी की गारंटी पे उसे छोड़ देने का प्रोसेस है। दूसरा आपको ऑफेंसेस बताने हैं, किन किन ऑफेंसेस के लिए है। तीसरा डिफरेंस, निकिता कंटिन्यू। हम्म 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 ओके, गुड गुड, नाइस नाइस अटेम्प्ट। और इसमें ये थर्ड डिफरेंस जो आ जाएगा आपका, बॉन्ड का आ जाएगा। यहाँ पे बॉन्ड नहीं होता है और यहाँ पे बॉन्ड होता है। एग्जैक्टली exactly. क्या यहाँ पे सुपरविजन ऑर्डर दिया जा सकता है? यहाँ पे कोई सुपरविजन ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, यहाँ पे सुपरविजन ऑर्डर दिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करना नेसेसरी नहीं है, रिपोर्ट की जरूरत ही नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन दी कोर्ट के न्याय, सद्विवेक पे निर्भर करेगा, ठीक है। कॉन्शियंस ऑफ द कोर्ट, डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। तो यहाँ पे आ गया आपका रिपोर्ट ऑफ पीओ। ओके, वेरी नाइस निकिता। आपने, मैं सिर्फ 3 डिफरेंसेस एक्सपेक्ट करी थी, बट आपने 1 2 3 5 डिफरेंसेस दे दिए, ठीक है। नॉट रिक्वायर्ड हियर, इट इज रिक्वायर्ड। सो निकिता विल गेट 3 points
निकिता का स्कोर कितना हो गया गाइस? 8। अब देख लीजिए, ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही होता है, ऑनलाइन वाले बच्चों का लॉस हो रहा है, बट क्या कर सकते हैं। एटलीस्ट यू गाइज आर गेटिंग द क्वेश्चंस what the examiner is expecting from you. You are understanding that कि जब differences पूछे जाएं due admonition और probation में तो कैसे लिखना है। Yes guys, I need answers. Yes, ma'am. I need to hear voices. मुझे proof चाहिए. Everything is proof and evidence based in law, and I need proof that you guys are awake because I cannot Yes, see you ma'am. guys. Yes, ठीक है, good. So सिंस यहाँ पे डिफरेंसेस में ही ये क्वेश्चन कवर हो चुका है कि ऑफेंसेस कौन कौन से हैं, लेट्स स्किप दैट। मुझे ये बताइए, व्हाट आर द कंडीशंस, हिंदी मीडियम वालों के लिए वो कौन सी शर्तें हैं जिनमें सेक्शन 6 में जो रेस्ट्रिक्शन दी गई है कोर्ट पे वो ऑपरेट करेगी। कोर्ट को वो रेस्ट्रिक्शन किन किन कंडीशंस में माननी पड़ेंगी। यस शालू। Ma'am, can I answer? Okay. एक सेकंड, शालू ने पहले हैंड रेज किया था यहाँ पे। Okay, ma'am. हाँ, और ऑफेंस क्या है ये तो आपने बताया नहीं। नहीं, रॉन्ग रॉन्ग। अब आपका चांस गया। नाउ जूम पे कौन बोल रहा था यहाँ पे ऑनलाइन? मैम दिव्या, मैं बोल रही यस थी। दिव्या बोलिए। मैम हमारा सेक्शन 6 जो है बोलता है कि पहली रिक्वायरमेंट जो है ये चीज 21 इयर्स ऑफ एज का होना चाहिए। द ऑफेंडर शुड बी ऑफ 21 इयर्स ऑफ एज एंड द इम्प्रिजनमेंट शुड बी रेगुलर इम्प्रिजनमेंट, नॉट excluding life imprisonment. Yes and what other conditions are there? सेक्शन 3 और 4 आता है, इतना याद है मैम, किस कॉन्टेक्स्ट में आता है वो याद नहीं आ रहा है। ओके, लाइक आई डू सेक्शन 3 और 4 में रिलीज करना पड़ेगा। अगर कोई ऑफेंडर को इस तरह डील नहीं करते हैं तो कोर्ट को जो है रीजंस राइटिंग में रिकॉर्ड करने पड़ेंगे कि हमने इसके साथ इस तरह से डील क्यों नहीं किया है। ऑल राइट, ओके ओके। गॉट इट, थैंक यू। दिव्या गिव द आंसर। जी मैम। दिव्या के 3 पॉइंट्स। ओके, मुझे 3 लाइन या उससे कम में कौन ये बताएगा कि डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग कन्विक्शन क्या होती है? Ma'am, it is in section 12 of probation. Wrong. Richa, you are right. Yes, continue Richa. It is in section 12 of probation, जिसमें ये बताया गया है कि जो सेक्शन 3 और 4 में अगर आपको एडमोनिशन और प्रोबेशन पर छोड़ा गया है तो ये इन फ्यूचर आपको डिस्क्वालीफाई किसी चीज से नहीं करेगा। Yes, बिल्कुल बिल्कुल सही रिचा। रिचा का यहाँ पे लेकिन नाम उसमें नहीं एक आया है। प्रोविजो भी है हाँ, मैम, उसमें प्रोवाइजो भी है। प्रोविजो भी है। हाँ, प्रोवाइजो भी है। प्रोवाइजो, हाँ उसका प्रोवाइजो यही है कि मतलब ये चीज आपको सिर्फ एक बार काम आ सकती है। अगर आप नहीं सेकेंडली नहीं, या फिर अगर मेन subsequent- ऑफेंस के लिए पनिश कर दिया ना यस मैम, यस यस, बोलूं मैं कंटिन्यू। मेन ऑफेंस उसको के लिए उसके पनिश कर दिया तो फिर वो एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन 12। यस, बट पहले आंसर रिचा ने दिया था और डिस्क्वालिफिकेशन अटैचिंग कन्विक्शन के लिए ये परफेक्ट आंसर है। ठीक है, सेक्शन 12 से ही स्टार्ट करना। निकिता, अगर आप शॉर्ट आंसर में ये स्टार्ट करेंगे सेक्शन 3 और 4 में ऐसा दिया गया है, ऐसे नहीं, गलत। सीधा टू द पॉइंट सटीक बात लिखनी है हमें। ठीक है, ना अपना टाइम वेस्ट करना है ना एग्जामिनर का टाइम वेस्ट करना है। रिचा जैन, तो रिचा का आरजे कर देते हैं। रिचा का 1 पॉइंट हो गया है। ठीक है रिचा। Yes, ma'am. ओके, व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ सुपरविजन ऑर्डर? 1 year, रॉन्ग मैम। रॉन्ग। मैम 1 year। मैम 1 वर्ष से कम नहीं होगा, ज्यादा कितना भी हो। वेरी गुड राजन। नॉट लेस देन 1 ईयर। 1 ईयर नहीं होता है, नॉट लेस देन, एटलीस्ट 1 ईयर तो होना ही चाहिए। ओके, वेरिएशन करना हो अगर प्रोबेशन ऑर्डर की कंडीशंस में, तो वेरिएशन के लिए एप्लीकेशन कौन फाइल कर सकता है? प्रोबेशन प्रोबेशन ऑफिस, ऑफिसर। सेक्शन 8।
सेक्शन 8 प्रोबेशन ऑफिसर, ठीक है। निकिता 1 पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन is release under probation act dishonorable discharge or is it honorable acquittal? What is the nature of release under probation act? क्या उसे honorable acquittal माना जा सकता है? नो मैम। आंसर yes और no के बाद लॉजिक, बिना लॉजिक के there is no answer. बिना Ma'am, लॉजिक के the answer is not ma'am, valid. it is not an honorable acquittal because, ma'am, court can call the accused anytime to get the punishment if it finds it against the conditions of the bond or anything. बच्चे आपका नाम? खुशी। खुशी, आपने आंसर तो करेक्ट किया है बट आपका लॉजिक गलत है। मूविंग ऑन, और कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? मैंने तो डील किया था इसके साथ क्लास में। मैम एक बार वापस आप थोड़ा ब्रेक डाउन कर देंगी क्वेश्चन प्लीज। क्वेश्चन ये है, क्या प्रोबेशन में जो रिलीज होती है वो ऑनरेबल अक्विटल की कैटेगरी में फॉल करती है? क्या वो ऑनरेबल अक्विटल माना जाता है? इफ यस वाई, इफ नो वाई? बट ऐसे तो नहीं लिख सकते कि सर सेक्शन 3 का प्रोवाइजो ऐसा कुछ कहता है बट याद नहीं। मैम मे आई अटेम्प्ट इट? यस रिचा, कंटिन्यू। ये ऑनरेबल अक्यूटल इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि प्रोबेशन पर तभी किसी पर्सन को रिलीज किया जाता है जब उसको कन्विक्शन दे दिया जाता है कोर्ट वेरी के गुड, द्वारा। वेरी 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 गुड रिचा, दिस इज द करेक्ट लॉजिक। रिचा के हो जाते हैं 2 पॉइंट्स। रिलीज तभी होता है व्हेन अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी। फाउंड गिल्टी हो चुका है, यानी कि यहाँ पे अक्विटल का तो सवाल ही नहीं उठता। अक्विट सिर्फ उसे किया जाता है जिसे गिल्टी फाउंड नहीं किया गया। अक्विटल है ही नहीं किसी तरीके का, सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट मिलता है कि आपको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा रहा है सेक्शन 12 में। ठीक है, ऑल राइट, ओके। रिचा आपके 2 पॉइंट्स हो गए हैं। वेरी गुड रिचा। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फाइन अगर प्रोबेशन ऑर्डर की कंडीशंस को ब्रीच किया जाए? अगर फर्स्ट Wrong. टाइम है तो 50 रुपीज। हाँ, फर्स्ट टाइम है तो 50 रुपीज अंडर सेक्शन 8, नहीं सॉरी अंडर सेक्शन 9 9 में। 9। ऐसे नहीं लिख सकते आप लोग फाइन। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। नॉट मोर देन 50 रुपीज, नॉट मोर देन 50 रुपीज, है ना? ठीक है, बट किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया, इसलिए ये लैंग्वेज का, वर्ड्स का ध्यान देना है। फाइन, इम्प्रिजनमेंट, नॉट मोर देन, अप टू, नॉट लेस देन, ये सब चीजें ध्यान रखें। ऑल राइट मैम सॉरी टू इंटरप्ट, यस आप दिव्या। ये इसके प्रीवियस वाला क्वेश्चन वापस थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? थोड़ा बाउंस हो रहा है ऑनरेबल अक्विटल वाला। ओके 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 दिव्या, जब आप सेक्शन 3 या 4 स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें पहला एसेंशियल एलिमेंट क्या आता है? पहला एसेंशियल एलिमेंट आता है व्हेन अ पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग दिस एंड दिस ऑफेंस। आता है कि नहीं आता? जी मैम। तो जब किसी को फाउंड गिल्टी कर लिया जाता है तब उनका नेक्स्ट स्टेप होता है कन्विक्शन या फिर प्रोबेशन। यस मैम। पर उनका नेक्स्ट स्टेप कभी भी अक्विटल नहीं हो सकता। दैट इज द क्वेश्चन। यही क्वेश्चन है कि विल दिस बी कंसिडर्ड ऑनरेबल अक्विटल? नो दिव्या, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड ऑनरेबल अक्विटल, क्योंकि अब वो इस स्टेज पे आ ही नहीं सकता। दिस स्टेज इज ओनली फॉर द पर्संस हु आर नॉट फाउंड गिल्टी, हु आर नॉट फाउंड गिल्टी। फाउंड गिल्टी तो हो चुका है। ऑल राइट दिव्या, समझ आ गया? ओके मैम, गॉट इट। वो कीवर्ड्स आप यूज करके फिर ठीक है, समझा। यस थैंक यू। यस, एग्जैक्टली, जो ओके। मैं ढूंढ रही हूँ अलग से प्रोविजन भी नहीं है, मैं कहाँ गलत जा रही हूँ। इट्स ओके, इट्स ओके। ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड जब पेपर होता है तो ऐसा ही होता है। बेनिफिशियल आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिया गया है कि भाई छोड़ना ही है और अक्यूज का भला ही करना है, रिहैबिलिटेटिव है नेचर इसका। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि पूरा अक्विटल ही है। ऐसे अक्विट करते रहेंगे तो फिर वो आ जाएगा प्रोबेशन का
वास्ता लेकर के, यू कैन नॉट अक्विट अ पर्सन अगेन एंड अगेन। अक्विट तो करना ही नहीं है, कन्विक्टेड है और अक्विटल नहीं माना जाए। ऑल राइट, ओके, Got it, नेक्स्ट ma'am. Thank क्वेश्चन। you so much. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताइए कि प्रोबेशन ऑफिसर, पूरा क्वेश्चन सुनेंगे और दोनों पार्ट्स जो अटेम्प्ट कर सकता है वो ही जवाब देगा। प्रोबेशन ऑफिसर कौन है और कौन से सेक्शन में अपॉइंट किया जाता है? यस, शालू ने पहले हाथ खड़ा मैम मैं किया। बताऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही। हिंदी मीडियम में शालू को एक पॉइंट मिल चुका है। इंग्लिश मीडियम में कौन अटेम्प्ट करना चाहेगा? English medium में I'd like to try, ma'am. ओके But दिव्या। I think someone else would also said कि कोई बताएंगे तो. नहीं नहीं, दिव्या कंटिन्यू। Okay, ma'am. So probation officers are appointed under section 13. ये यस हमारे state government करते हैं यस or anyone recognized by the state government. यस Next, we also have who specifically appointed for a particular purpose by a society, which should again be recognized by the state government. यस And lastly, in an exceptional matter, when court का opinion होता है, तो yes, this person can act if they're fit, deemed to be fit, I believe is the term. No, fit to act. I don't remember, but they should be एज अ eligible by प्रोबेशन the court. ऑफिसर अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। गुड गुड दिव्या, बट आपने एक इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी, शालू ने भी मिस कर दी और आपने भी मिस कर दी। मैम मे आई अटेम्प्ट दैट थिंग? मैम सबसेक्शन, कलेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है प्रोबेशन ऑफिसर को हाँ कुछ कलेक्टर भी, कंडीशंस में। कलेक्टर भी अपॉइंट कर सकता है या चेंज कर सकता है कुछ कंडीशंस में। Yes. चेंज का ज्यादा उसका रोल है बिकॉज वो उसके जुरिस्डिक्शन में रहता है, ठीक है, इसलिए वो चेंज कर सकता है। आप लोगों ने किसी ने भी सेक्शन 2 की बात नहीं की। सेक्शन 2, सेक्शन 2 2B डिफाइंड कहाँ पे है? डेफिनेशन क्लॉज में। Okay. क्लॉज बी मैम। या तो दिव्या, आपको एक पॉइंट मिलता है 4। बट ये ध्यान रखना है, जब ऐसे पूछा जाए कि डिफाइन प्रोबेशन ऑफिसर कौन है, तो पहले इंट्रोडक्शन में आप ये लाइन लिखेंगे कि सेक्शन 2 में ये क्लॉज दिया गया है जहां पे ये बताया गया है कि सेक्शन 13 में किस तरह अपॉइंट किया जाता है, और फिर सेक्शन 13 पे आएंगे, ठीक है। और Got it, शालू ma'am. को भी एक पॉइंट दिया जाता है। शालू विल ऑल्सो गेट 1 पॉइंट। ओके, नाउ टेल मी, कौन से केस में ये हेल्ड किया गया था कि हर किसी केस में 3 और 4 का फायदा नहीं दिया जा सकता? आई एम गोइंग टू रिपीट दिस क्वेश्चन इन इंग्लिश। In which case it was held that the benefit of probation under 3 and 4 cannot be given to each and every offense? Name the case. State of Gujarat versus AK Chauhan. करेक्ट, शालू ने करेक्ट दिया है। दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में इट वाज हेल्ड कि हर केस में बिना सोचे समझे केस नहीं डाल सकते प्रोबेशन में। द कोर्ट हैज टू कंसिडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, द नेचर ऑफ द ऑफेंस and what is the third thing? Character of the offender. Good, okay. मैम शालू केस को का एक नेम पॉइंट। रिपीट कर देंगे? दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। शालू के 4 पॉइंट्स हो गए हैं। वेरी गुड शालू। मैम ये कब का केस है? कोई ये बच्चा मुझे साइटेशन इसका याद नहीं है, शायद 83 का है ये, 1983। ओके, थैंक यू मैम. एक बार ही कंफर्म कर लीजिए फिर से। नोट्स हैं आप लोगों के कर पास लेते हैं मैम। प्रोबेशन के? क्लास नोट्स? कोई बात नहीं, क्लास नोट्स खोल लीजिए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन ब्राउनी पॉइंट्स के लिए है। 3 पॉइंट्स का क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन पूरा अटेम्प्ट करेगा सिर्फ उसे 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन तब पूछेंगे जब आप नोट्स बंद कर देंगे। फटाफट से देख लीजिए कि साइटेशन क्या है दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की। 2000, दलवीर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इज अ केस ऑफ 2000 सुप्रीम कोर्ट। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, under which acts
द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन कैन नॉट बी गिवन। ऐसे कौन से दूसरे कानून हैं जिनके तहत परिवीक्षा का लाभ नहीं दिया जा सकता? पहले इंग्लिश मीडियम वालों से ले लेते हैं। ऑनलाइन कोई बोलना चाहता है? यस मैम। मैं आंसर करूं? विजय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। विजय, मे आई अटेम्प्ट? हाँ 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 जी। बोलिए बोलिए, ओके। कीजिए अटेम्प्ट, बोलिए, आई एम लिसनिंग। मैम मुझे बोलना है क्या? हाँ हाँ, मैं बोलूं ऋचा या फिर जो भी दूसरे हैं वो बोल रहे हैं? अब ये मैं हो रहा है यहाँ पे। अब अगली बारी वाइवा के लिए सबको आना है। ओके मैम, अकॉर्डिंग टू सेक्शन ऋचा 18। आप बोल दो। हाँ ठीक ओके है, ठीक है, मैम, बोल दीजिए। अकॉर्डिंग आप लोग आपस में डिसाइड कर लीजिए। हिंदी मीडियम का कौन है और इंग्लिश मीडियम का कौन है? मैम मैं हिंदी मीडियम। मैम देन आई विल गो फॉर इंग्लिश मीडियम। कौन ओके अगर कोई ओके, और ऋचा है तो? ऋचा पहले आप बोल दीजिए। मैम अकॉर्डिंग टू सेक्शन 18, जो प्रोबेशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1947 का, वो मतलब इसका इस पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कोई बात नहीं, हो जाता है। हाँ उस पे ये अप्लाई नहीं होगा। हाँ, और एक जो अपन पढ़ते हैं मतलब कि इमोरल ट्रैफिकिंग इन वुमेन एंड गर्ल्स, या फिर इसको तो अब रिपील कर दिया, लेकिन एक रिफॉर्मेटरी स्कूल एक्ट्स है, उसका सेक्शन 31 पर ये अप्लाई नहीं होता। हम्म, इसमें दो ही एक्ट डिफाइन है, जो जो करप्शन एक्ट है उसका तो सेक्शन 5 है, और रिफॉर्मेटरी स्कूल्स का सेक्शन एक और 31 है। है। एक और एक चीज और है, मैम, एक और और है, है। मैं बोल सकती हूँ। किशोर अपराधी या बॉस्टल जुवेनाइल स्कूलों एक्ट, से रिलेटेड है। अब जुवेनाइल ऋचा ने अटेम्प्ट जुवेनाइल कर लिया एक बार, इसलिए ऋचा आपका अटेम्प्ट कैंसिल हो गया, मैंने पहले ही कहा था। अब शालू हिंदी मीडियम से जवाब देंगी। यस शालू। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, यस। जुवेनाइल जस्टिस और बॉर्स्टल से रिलेटेड लॉज, बॉर्स्टल लॉज, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट नहीं लिखा है उसमें शालू, से रिलेटेड लॉज, यस। ठीक है, ओके, दिस इज गुड। तो पहले शालू को एक पॉइंट मिलेगा। और इंग्लिश मीडियम से किसने कहा था? विजय ने कहा था। आपको भी एक पॉइंट मिल जाएगा, बिकॉज ये बहुत इजी है अब। ठीक है, अब हम जिस क्वेश्चन पे आ रहे हैं, नहीं ये तो 3 पॉइंट्स का था ना, सॉरी 7 पॉइंट्स। शालू आपके 7 पॉइंट्स हो गए, वेरी गुड। अब जो आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, डोंट लूज होप, डोंट गेट डिसहार्टेंड, वो भी 3 पॉइंट्स का है। एक्सेप्शंस ऑफ प्रोबेशन एक्ट बताएंगे। एक्सेप्शंस क्या क्या हैं प्रोबेशन एक्ट के, किन किन एक्ट्स में दिया हुआ है कि यहाँ प्रोबेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा। हमने ये क्लास में पढ़ा है। मैम फर्स्ट तो सेक्शन 33 एनडीपीएस एक्ट का है। यस सेकंड आ जाएगा इंडियन डिफेंस एक्ट का यस सेक्शन 43। यस, देन फिर आ जाएगा फूड अल्ट्रेशन एक्ट फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, और इंडियन डिफेंस एक्ट, और हाँ एससी एसटी एक्ट भी है। और मैम SC इसमें एक्ट। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है कि ये जो डेथ और एलआई से रिलेटेड मैटर्स है, उन पर भी प्रोबेशन अप्लाई नहीं होगा। हाँ जी, डेथ और एलआई से रिलेटेड मैटर्स, और ऐसे कोई मैटर्स जिनमें ग्रेव या हीनस ऑफेंसेस के साथ डील किया जा रहा है, तो वो भी नहीं होगा। अब ये बात कर दिया आपने, किसने किया था ये बात? मैम मैंने, ऋचा। ऋचा। तो ऋचा आपके लिए क्वेश्चन है और ये सिर्फ ऋचा ही जवाब देगी। कौन से केस में ये हेल्ड किया था कि एक यंग ऑफेंडर ने रेप का क्राइम कमिट कर दिया है, तो उसे प्रोबेशन का फायदा नहीं दिया जाएगा? मैम एग्जैक्टली मेरे को नाम याद नहीं है, पर वो स्टेट ऑफ बिहार का केस था। ओके, मैम फूल सिंह वर्सेस हरियाणा का है। वेरी गुड। किसने बोला? जवाब किसने दिया? रीना ने। रीना रिया? रीना 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 ने दिया है। रीना के 2 पॉइंट्स हो गए। और एक और केस भी है इसमें, गुड, शालू के 8 पॉइंट्स हो गए। श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा इज अ सिमिलर केस इन विच इट वाज हेल्ड दैट कमर्शियल प्रोस्टिट्यूशन करवाया जा रहा है, एंड उस केस में इट्स अ हीनस ऑफेंस, इट्स अ ग्रेव ऑफेंस, फायदा नहीं दिया जाएगा। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच मैम दूसरा केस, दूसरा केस लो कौन था लास्ट? एक फूल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा और दूसरा श्रीमती देवकी वर्सेस स्टेट ऑफ
हरियाणा। ओके हरियाणा थैंक यू। हाँ जी 1979 का है ये। हाँ जी, अच्छा 79 और ठीक एक है थैंक यू। 1980 का है। ओके ग्रेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which case the Supreme Court held that gold smuggling is an economic offense, it affects public revenue, उसका prosecution करना बहुत मुश्किल है, इसलिए उसके लिए probation का benefit नहीं दिया जाएगा। In which case it was held? मैम नटवर लाल का मैं केस है, बोलूं? स्टेट ऑफ Wrong महाराष्ट्र चालू। वर्सेस नटवर लाल। Yes, very good. किसने दिया है आंसर? Who answered? State of Natwar Lal, State of Maharashtra versus Natwar Lal. रीना। रीना ने दिया है। यस मैम। रीना के 3 points. ग्रेट, वी आर गोइंग ग्रेट। अच्छा चल रहा है और सभी लोग मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये जो एक एक पॉइंट वाले लोग हैं इनसे मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ, और जिन लोगों ने एक बार भी जवाब नहीं दिया है उनसे भी। मैम इस केस में क्या हुआ था, नटवरलाल वाले केस में? गोल्ड स्मगलिंग का केस था। इसमें ये हुआ था कि अगर गोल्ड स्मगलिंग का केस है तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि पब्लिक रेवेन्यू को अफेक्ट कर रहा है, इकोनॉमी को अफेक्ट कर रहा है, इन केसेस का प्रोसिक्यूशन करना बहुत मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पूरा स्टिंग ऑपरेशन क्रिएट करना पड़ता है, इसलिए इन केसेस में प्रोबेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। मैम इसका साइटेशन क्या है प्लीज? नटवर लाल का साइटेशन बताइए गाइस। आई थिंक इट्स 80s में है कहीं। 1980। ओके शायद नहीं थैंक यू। शायद नहीं चलता। और साइटेशंस याद नहीं हो अगर तो कभी भी गलत साइटेशन नहीं लिख के आनी है। ग्रुप पे केसेस, ग्रुप है आप लोगों के पास, ग्रुप पे केसेस के नाम डाल देना, ठीक है? ओके ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम यस पिंकी। मैम जब ये क्वेश्चन आए कि ये किन पर लागू नहीं होगा, तो मैम जो आपने केसेस मतलब ये जो मामले आपने बताए तो ये आ जाएंगे, और मैम उसमें 18 और 19 सेक्शन में डाल दे ना फिर। नहीं इसलिए नहीं क्योंकि ये जो है ये एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन होना अलग बात है और सेविंग होना अलग बात है। उनमें तो 18 और 19 तो बोला हुआ ही है एक्ट के अंदर कि इनको हम बाहर रख रहे हैं इसकी परिधि से, इसकी एप्लीकेशन से। बट ये एक्सेप्शन दिए हुए हैं इन सभी एक्ट्स में। इन चारों एक्ट्स में एक एक सेक्शन है जिसमें ये डिस्कस किया गया है कि प्रोबेशन एक्ट क्यों अप्लाई नहीं होगा यहाँ पे, और अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ इन कंडीशन में होगा कि 18 ईयर्स से कम का अक्यूज्ड है तो हम उसे प्रोबेशन का बेनिफिट दे सकते हैं। एक्सेप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम सेविंग। ओके, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ सेविंग है, कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, तो आप ये लिखेंगे व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट। तो ये एक्सेप्शंस प्लस आपके केस लॉज आ जाएंगे उसमें। गेट इट? ओके मैम। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि प्रोबेशन एक्ट की डेट ऑफ एनफोर्समेंट क्या है? 16th May मैम कैन आई आंसर? या दिव्या? यस। 16th May 1958 मैम। Wrong. All of you are wrong. All of you are wrong. Different states के लिए date of enforcement different होगी. It did not come into force on any one 1 date. अक्टूबर 1962। No, no, 1 no. You अक्टूबर guys are. 1962 राजस्थान में। But आप सिर्फ राजस्थान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं होता है। प्रिपरेशन इज प्रिपरेशन। अभी आप मेंस के लिए भी कर रहे हैं, अभी आप इंटरव्यू के लिए भी कर रहे हैं, और अभी आप प्रीलिम्स के लिए भी कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचना कि एक स्टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कभी ये नहीं सोचना कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए करनी है, मेंस का तो बाद में देखा जाएगा। नहीं सोचना है, साथ में, ठीक है? तो ये है कि राजस्थान का डेट भी पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि सब स्टेट्स का अलग अलग है डेट ऑफ एनफोर्समेंट, राइट? इसका किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अच्छा फटाफट से, 1 अक्टूबर 1962 को एप्लीकेबल हुआ था। ये तो आपने वो बताया ना कि असेंट, असेंट का मिला था। असेंट कब मिली थी? 16 में ही बताया, और राजस्थान में 1 अक्टूबर बता दिया आपने। अब ये ऐसे एक डेट 16 में हो गई, एक डेट 1 अक्टूबर हो गई, लेकिन जो लॉजिक है ये है कि सारे स्टेट्स में अलग अलग डेट ऑफ एप्लीकेशन है, कोई डेट ऑफ एप्लीकेशन है ही नहीं, ठीक है? ओके। द नेक्स्ट
part, the next question is for again 3 points, and I think this will be our last question. So अब जो भी है जान लगा देंगे अपनी. प्रोबेशन ऑफिसर्स की एटलीस्ट 3 ड्यूटीज जो मुझे बता सकता है वो अपने हाथ खड़े करे. पहले निकिता इंग्लिश मीडियम से, फिर मैम हिंदी में. then I can go. नहीं. हम्म. 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 जो भी प्रिस्क्राइब होंगे. यस शालू, अब आप बताइए. हम्म. अदर ड्यूटीज एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड. वेरी गुड शालू. शालू को मिलते हैं 3 पॉइंट्स और निकिता को मिलेंगे 2 पॉइंट्स, बिकॉज उसका इंक्वायरी का पार्ट जो कोर्ट उसे बोलेगा इंक्वायर करने के लिए कि इस बंदे की इंक्वायरी करके हमें बताओ, रिपोर्ट दो, दैट इज द मेन ड्यूटी, मेन पार्ट जो शालू ने बोला और निकिता ने नहीं बोला. ओके, तो शालू गेट्स हाउ मेनी पॉइंट्स? 3 पॉइंट्स. शालू का स्कोर हो गया 11 और निकिता आपका स्कोर भी हो गया 11. सो इट्स अ टाई बिटवीन हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम. कांटे की है टक्कर, समझ रहे हैं आप लोग? ओके गाइस, इट वाज गुड सेशन, इट वाज अ गुड सेशन, बट आई एम होपिंग कि अगली बार जो भी होगा ज्यादा प्रिपेयर्ड होंगे अच्छी तरीके से. और अगर सब लोग यहाँ आए और हम इस तरह का क्विज करें तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल. ओके. ओके गाइस. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.